राधा सुन धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। अखां बाजों वेखना अखां बाजों वेखना बिन कानी सुनना जी प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। पैरां बाजों चलना पैरां बाजों चलना बिन हथी करना जी प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। जीबे बाजों बोलना जीबे बाजों बोलना एहो जीवत मरना जी प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। नानक हुक्म पछाण के नानक हुक्म पछाण के ता खसमे मिलना जी प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। धुन घट विच वजदी ए प्यारिया गुर बिन समझ न आवे। राधा सुन बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सोरठ महला तीजा। भगत खजाना भगतन को दिया नाम हर तन सच सोए। भगत खजाना भगतन को दिया नाउ हर तन सच सोए। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। संतां दी बाणी जदों अच्छी तरह पढ़ी जाए सुनी जाए इस तरह मालूम होता है कि जिस तरह वो अपनियां ही गल्लां कर रहे। जो कुछ उन्होंने किया है सो बाणी च लिखिया है। भगती का खजाना जिहड़ा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जिहड़ा अलग अलग होंदा है अलग अलग कोर्स होंदे है। दुनिया दे विच भी अलग अलग कोर्स ने और परमार्थ के भी अलग अलग कोर्स ने। बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं जिन्हां दा बहुत सारा टाइम लगता है जिन्हां दे सानू सारी 84 भुगत के भी किते मुश्किल ही मनुष्य जन्म मिलता है। कई कोर्स ऐसे है जिन्हां तो जल्दी ही असी अपने देश जा सकते हैं। वो कोर्स किन्हां दा है? संतां महापुरखां दा। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी दुनिया के नाल रले मिले। पहली अवस्था दे विच उन्होंने बहुत सारे काम किए। 22 वार इतिहास विच दस्सिया है कि उन्होंने तीर्थ यात्रा की सी और जगमोशे भी करते रहे। पर जिस चीज़ की खास सी जो चाहते सी वो उन्होंने मिलिया नहीं। उन्होंने घर विच ही उन्हों की भतीजा नूं लगती सी जिसनों बीबी अमरो करके बुलाते हैं।
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਨ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਭਜਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰਲੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਲ ਤੋਂ ਨਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੀ ਚਾਂਦਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਹੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਲੜਕੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਬਲੇ ਆਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਖਿਆਲ ਉਲਟੇ ਫੁਲਟੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
जिस तरह हज़रत बहू साहब ने बाणी च फरमाया, पत्थर चित जिन्हां दे वाहू उत्थे जाया वसना मींह आहो। सब तो पहला साढ़े हंकार ते मान नूं जिहड़े साढ़े दिल दे पत्थर बने अंदर, इन्हां नूं फकीर जिहड़े है ये खत्म करदे है। जितना चिर साढ़े विच मान हुंदा है उत्थे नाम दा कोई तलक नहीं। एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां। उन्हां सोचिया कि इन्हां नूं कोई ऐसी करड़ी सेवा दसीए जिहदे नाल जल्दी तो जल्दी साफ हो जाण। की सेवा दसी कि भाई अगे तू तीर्थां दा इशनान करदा सी, हुण पानी लिया के मैनू इशनान कराया कर। कई बार अगे भी दसिया है कि संत मते का पेज बड़ा उल्टा जिहा है, जे सीधा पै जाए तो जल्दी ही फिट हो जाता है, तो जे ना एक दंदे का भी फर्क पै जाए तो सारी दिन भावें लगा रहे या उम्र भी लगा रहे तो फिट नहीं होता। इशनान कोई करे मैल किसी की लथे। 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील रोज़ का सफ़र, बिरध अवस्था और सिर ते पानी की मटकी, सही टाइम ते आके इशनान कराना। कई बार दिल च सोचा है गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां होंदियां, काम करना बड़ा औखा है। 12 मील सफ़र करते सी, किस वक्त तो सौंदे होणगे, किस वक्त उठते सन, सही टाइम ते आके इशनान कराउंदे सी। फिर कुड़म कुड़म का पानी ढोवे कितना औखा है। कुड़म ते घर गए तो किसी के मंजे तो पैर नहीं थले लाउंदा। किस तरह उन्होंने मान वड्याई नूं छड्डिया। कई ताने मीणे, अमरू नथाया इसनूं कोई थां नहीं, दिन राती तुरया रहिंदा है, पर उन्हें परवाह नहीं की। ये सारे फकीरां दे नाल ताने ते मीने जिहड़े है चलते ही रहिंदे है। पर कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा बांग या रूड़ी सही है। भाई जो भी कोई सुटदा उन्होंने रूड़ी की तरह सही जाओ, सबर की झोली बना लो, उहदे च पाई जाओ। एक दिन वो रूड़ी जिहड़ी है उसकी कीमत पैंदी है। कई बार अगे दसिया कि जिहड़ा रूड़ी च तत्त हुंदा है वो साडे घ्यो च नहीं है। कोई अमीर आदमी अपनी खेती में घ्यों के कनस्तर डोल देगा तो कितना क फसल हो जाएगा, पर जिथे रूड़ी पाई होगी वो दस देगी कि मैं इत्थे पई हाँ, क्योंकि उहदे च जिहड़ा तत्त पैदा होंदा है। असी सारी दुनिया ही कुछ है, पर जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम की कमाई की है उन्हां विच वो तत्त पैदा हो जाता है जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा दिंदा है। वो तत्त पैदा हो जाता है रूड़ी की तरह। गुरु साहब ने 12 साल गुजर गए। 12 साल उन्होंने पानी लिया के अपने मुर्शद नूं इशनान कराया। 12 साल के बाद उन्हां दे अंदर वो शब्द प्रगट होया जिहड़ा भगती का खजाना है। ये नहीं कि सानू बैंक की चाबी मिल गई है जां कोई जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। वो खजाना होर है, वो लाजवान है, वो किसी अखां इन्हां नाल देखिया नहीं जाता, ये जबान नाल बोलिया नहीं जाता। महात्मा बुद्ध नूं लोकां ने कहा और आराम नाल बैठे सी, लोगों ने कहा कि कोई परमात्मा के बाबत कोई गल सुनाओ, वो चुप करके बैठे रहे। कड़ी मुड़ी कहन ते लोगों ने कहा कि भाई मैं वो परमात्मा की आवाज़ नूं सुन रहा, जो परमात्मा गल्लां कर रहा है, सुना रहा,
मैं वो सुन रहा, वो तुहानू दस्सण वाली गल नहीं। मैं तुहानू की दस्सां, ਉਹਦਾ कोई बाहर निशाना नहीं, बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहदे नाल मैं तुहानू दस्सां कि ओहो जी है। ये तो मजाजी आशिक जिन्हां दे असली प्यार सन उन्होंने भी कहा। मजनू ने कहा लैला नू, लैला मैं तेरी तारीफ काहदे नाल करां, किसी बाग दे विच काला फुल नहीं है। बाग दे विच काला फुल भी नहीं, मैं तेरी तारीफ करां ते किस चीज़ दे नाल करां। वो जिहड़ी अंदर साडे तो आ रही है, शब्द आ रहा है, असी उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ना किसी नूं असी दस सकते हैं। 12 साल के बाद वो खजाना महाराज तीसरी पातशाही नूं मिलिया। पिछे दसिया कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग ने, जैसा जैसा कोई काम करता है ऐसी उसनूं कुदरत वालों ड्यूटी मिल जाती है। जो दुनिया च करता दुनिया च मिल जाती है, परमार्थ करता परमार्थ मिलती है। जैसा जैसा भी कोई काम करता, महाराज तीसरी पातशाही ने अतुट भगती की। सिर्फ पानी नहीं लिया, साढ़े वांगर नहीं, असी थोड़ी बहुती सेवा करते हैं तो भजन करते ही नहीं। कहने असी सेवा जो की है, भजन की की लोड़ है। जे कोई माया की थोड़ी बहुती सेवा करता तो वह भी कहता मैं माया की सेवा की है, भजन की की जरूरत है। वो पानी भी लियाते सी और रात के वक्त जागते सन। रात के वक्त जाग के किली नाल बाल बन देने, खड़े रहना। साढ़े कोल कई रिपोर्टां आउंदियां जी, जदों असीं भजन बहने नींद आ जाती है। वो नींद का इलाज करते सी, किली नाल बाल बन देने। जदों भी नींद आएगी, जिधर मैं डिगांगा मैनूं दर्द होएगी, जाग आ जाएगी। जिसने जो कोई काम करना है वो नाल ही उसदा साधन भी रख लेंदा है। एक मुसलमान फकीर सी, उन्हें सर्दियां दे दिन अपनी एक हत्थ नूं एक बांह नूं नंगे कर देना ते बाहर कर देना कपड़े चों कि ठंड लगेगी तो मैनूं जाग आ जाएगी, मैं भजन करांगा। भजन करन वास्ते जिन्हें करना है वो बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, बहुत सारे यतन हैगे ने। जे जिन नहीं करना उहदे वास्ते कोई नहीं। गुरु साहब जी बाणी च दस्सिया है, महाराज तीसरी पातशाही ने साड़ियाँ दुनिया दीयां हालतां देख के तंदा तावत दिन गया, रात गवाई सोए। ये किनू क्या, सानू आप दुनिया नूं। असी दुनिया के धंधियां च दिन गुजार देंदे हाँ और रात सौ के गुजार देंदे हाँ। असी ये नहीं कदी सोचिया अपने आप दे विच कीड़े मकोड़े भी सौंगे, पशु भी सौंगे, परिंदे भी सौंगे, सप ठूए भी सौ जाते हैं। असी भी उन्हां दे नाल ही सौंगे। हुण असी बड़े किस तरह बन सकते हैं? साढ़े बड़े बनने का तरीका की है? साढ़े परमात्मा ने 5 तत्त पाए, वो तत्तां दे लिहाज नाल बहुत सारे साढ़े नालों घट ने। जे असी उन्हां दे नाल ही रोटी पानी खा के सौ गए तो फिर असी उन्हां वर्गे ही बन गए। असी अपने आप नूं की कह सकते हैं? पर ये गुरु साहब ने जदों उन्होंने मुरशद मिलिया, जदों पूरी समझ आई, फिर उन्होंने दस्या है ऐस युग का धर्म पढ़ो पाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। ऐस युग दे विच नाम की बड़ी जरूरत है, नाम जपण की जरूरत है। पिछले युगां दे विच जिहड़े साधन ही वो अज सानू काम नहीं देंदे। सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कल युग में नाम हदार। कल युग दे विच संतां महापुरखां ने नाम ही प्रधान रखिया है। इहदे बिना साडी कोई कल्याण नहीं हो सकती। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए उन्हां नाम की शोभा कीती है। लेकिन असी बाणी सुनते हाँ
पढ़ते भी हाँ, लेकिन फिर भी असी रबड़ की तरह हो जाते। जिस तरह रबड़ नूं हजूर फरमाते होंदे सी शेक करो, तो पता लगता है कि सूआ इत्थे शेक हैगा, जदों बंद कढ़ दिओ तो मुड़ के रबड़ मिल जाता। ये हालत मिनट की मिनट सानू सिर्फ पत्थर की तरह, जिदा पत्थर से बदल पैंदा तो मिनट की मिनट सलाब होंदी है, फिर हवा नाल सुक जाता है। ये हालत साडी होंदी है। पर भाई काम तो कम है, काम तो करना ही पेगा। जिस काम दे नाल सानू दुनिया दे विच भी, अगर असी काम दे नाल ही माया कमाउंदे हाँ, काम नाल असी खेतीबाड़ी का फायदा लेंदे हाँ, काम दे नाल असी सब्जियां भाजियां जो भी दुनिया के काम लेंदे हाँ, घर बैठे हाँ मंजी दे बैठे हाँ कुछ नहीं हो सकता। परमार्थ भी सानू जिहड़ा है ये बंदगी दे बिना कुछ प्यार नहीं बनता। बंदगी दे बिना जिहड़ा प्यार ये टुटण का खतरा ही खतरा है। किसी वेले भी मन इनू झटका ला सकता है, पर जिहड़ा बंदगी करता है उन्होंने नहीं लग सकता। कई बार दसिया कि निजामुद्दीन हौलिया 22 सिख उसके मोहतबार सन। उन्होंने ट्राई करने वास्ते निजामुद्दीन हौलिये ने अपने सारे सिखां नूं कहा कि चलो अज शहर की सैर करिए। तो कुछ जिहड़े मान वडियाई वाले सी उन्हां दे ख्याल च आया कि पीर साहब जी कदे गए ही नहीं बाजार, अज पीर साहब नूं की चा चढ़िया। शर्मो शर्मी तुर पे। एक कंजरां दा बाजार आया, उत्थे खड़े हो गए। निजामुद्दीन हौलिया ने कहा भाई तुसीं इत्थे बैठो, मैनूं थोड़ा जिहा काम है, मैं उपर करके आ जाना। चला गए, जाके कंजरी नूं कहा बेटी मैनूं एक कमरा चाहिए अलग, मैं रात रहना। नाल अपने नौकर नूं भेज 2-4 फुलके लावे कोला दाल दा ते 2 बोतलां रंगदार शरबत दियां लियावे। उस तरह किया। जदों बोतलां देखियां उन्हां प्रेमियां ने ते बारों बारी किसक गए सारे। एक मीर खिसरो रहा। मीर खिसरो कला ही रहा जिहदे विच प्यार सी और विश्वास सी मुर्शद दा। जदों दूसरे दिन वापस आए थले तो कोई भी बंदा नहीं लभा। पूछया मीर खिसरो नूं कि कित्थे गए बाकी। कहन लगे जी पता नहीं किधर गए है, बारों बारी चला गया है। तू क्यों नहीं गया? या हज़रत मैनू कोई जगह नहीं, मैं कित्थे जांदा, मैनू तुहाडे चरनां दे बिना कोई जगह नहीं। देखो किड्डा वड्डा इम्तिहान है। और बाइयां चों एक पास होया, उसे वक्त गल ना ला लिया। दोनों दियां कबरां कट्ठियां ने, कबरां की पूजा हो रही, दोनों की पूजा हो रही। जो कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे सेवक स्वामी एक मत, ये मत में मत मिल जाए, ये ख्यालात मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहिंदा। विश्वास विश्वास होंदा है। एक परिंदे की हजूर कई बार मिसाल देंदे होंदे सी। किसी वरिश नूं अग लगी, उहदे उत्ते परिंदा बैठा सी। कोई कोलों दी लंघिया, उसने देखा तो परिंदे नूं कहा तू कितना मूर्ख है, वरिश नूं अग लगी है, तू उड़दा क्यों नहीं? आग लगी है वृक्ष को चढ़ चढ़ पैंदे पात, उड़दा क्यों नहीं पंछिया, फंग तुम्हारे पास, तू क्यों नहीं उड़दा? अगू पैंछी की जवाब देंदा है, मिठे खाधे मेवे इस वृक्ष दे, बिट्ठू परे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, सड़ना इसके पास। आज इसनों मुश्किल हुई है तो कि मैं इन्हूं छड्ड के चले जावां? मैं इसके मिठे मेवे खाधे है, ये पत्तियां मैं बिट्ठां नाल भरिया, इन्हें मैनूं कुछ नहीं किया।
आज ये ते मुश्किल आई, क्या मैं इनू छड्ड के चले जावां? मैं इहदे नाल सड़ांगा। एक परिंदे की मिसाल है। देखो कितना विश्वास होता उस वृक्ष के उत्ते, कितना प्यार सी उसका। असी अपने आप नूं ये मिसालां लैके अपने आप नूं मजबूत करना है, अपने आप दे दिल दे पाप दूर करने हैं और विश्वास रखना है। विश्वास दे नाल असी जो भी महापुरखों की सिक्ख्या होवे उस सिक्ख्या ते चलण की कोशिश करनी है, तद ही साडा प्यार जिहड़ा है पक्का ते मजबूत रहेगा। नहीं तो ये प्यार कुछ नहीं, प्यार टुटण दा मिनटां च ही खतरा है। किसी वेले भी सानू मन जिहड़ा ठेडा मार सकता है। इस वास्ते जिन्हां दा दरबार है, हजूर कहंदे हुंदे सी कि भाई बंदगी दे बिना कुछ नहीं जे बनना। भजन के बिना कोई अपने चाचे नूं नहीं छड़ा सकता, किसी नूं किन छड़ाना है। बंदगी की बहुत जरूरत है। कोई भी लड़का स्कूल च पढ़ता है, एक अद्धा लफ्ज जे उहदा गलत होंदा तो मास्टर उसकी मदद कर दिंदा है। तो जे सारा ही निल होवे तो फिर मास्टर की करेगा? सतसंग सतगुर क्या करे जो सिखण माए चूक, अंधे एक ना लगी ज्यों बांस बजाई फूक। उथे सतगुर की करेगा तो सतसंग की करेगा? जे एक लफ्ज भी साड़ा कन्ना च नहीं पैना उते की करेगा कोई? इस वास्ते पहली तुक दे विच गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भगत खजाना भगतन को दिया। वो खजाना केड़ा है जिहड़ा साडे अंदर शब्द आ रहा है, जिहड़ी साडे अंदर वो तुण आ रही है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हैं वो एक बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया के खजाने मुक जाते हैं लेकिन वो नहीं मुकता। वो खजाना दिनों दिन बढ़ता जाता है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे एक छोटी जी मिसाल देंदे है। एक बोड़ का दरख्त जिहड़ा हुंदा उसका बी कितना कुछ हुंदा है, वो नाम का इहदे तो भी बरीक है। बोड़ दे कितना क बी हुंदा उसका, जदों वो जमीन विच उगदा है उसनूं जमीन का रस मिलता जाता है, वो वधदा जाता है, किड्डा वड्डा दरख्त हो जाता है। कितने उस दे नाल उहदे फल पैंदे है, हज़ारां जीव उस तो गुजारा करते हैं। वो कटदा नहीं, वो वधदा जाता है। इस तरह नाम का बीज जिहड़ा है वो लाजबान है, वो साढ़े अंदर है। वो किसी जबान च नहीं बोलिया जाता, वो किसी नूं दस्सिया नहीं जाता, वो कुदरती ही वधदा जाता है। वो ना घट सकता है ना कोई उन्होंने घटा सकता है। घटाण वास्ते बहुत सारिया पिछलिया जवानियां दे विच जितने भी संत महापुरख आए उसनूं घटाण वास्ते फकीरां दे नाल कितने डंगे कीते है, की कुछ किया है। शेख तकी ने सिकंदर पातशाह दे वक़्त कबीर साहब दे नाल की किया है। देगां च बुआलिया, चिखा च जलाए, गंगा दे विच बन के सुटिया, हाथी अगे सुटिया, खूहां च सुटे, कई कुछ किया। लेकिन वो जिहड़ी महिमा सच्ची सी वो गायब नहीं हो सकी। आखिर उन्होंने उन्होंने चरनी डिगना पिया। आखिर उन्होंने चरनी डिगना पिया ते मनना पिया जो कुछ वो कहते थे। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। वो भगती का खजाना जिहड़ा वो गायब है, वो गोज है, वो किसी नूं नज़र नहीं आएगा। उहदे खजाने दे लैण वास्ते जो मुरशद दसे, दुख आए सुख आए गरीबी आए मीरी आए, ये नहीं कि बंदगी करदियां किसी नूं घोड़ा ही मिल जाना हैगा जां उसनूं कोई कार ही मिल जानी है। पता नहीं किहड़ियां औकड़ आउणियां ने, पता नहीं भुखे रहना नंगे रहना, पता नहीं किसी ने की कहना तो किसी ने की नहीं कहना। ये सब कुछ सहार के
ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟਕ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਬਣੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਦਾੜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਨਾਉ ਹਰ ਤਨ ਸਚ ਸੋਏ, ਅਖੋਟ ਨਾਮ ਤਨ ਕਦੇ ਨ ਖੁਟੇ ਨਾਹੀ, ਕਿਨੇ ਨ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਖਾਓ ਖਟੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੋਟ ਨਾਮ ਤਨ ਕਦੇ ਨ ਖੁਟੇ ਨਾਹੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਚ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
इस दुनिया की कई बार मिसाल देंदे हुंदे सी कि भाई जिसने रोटी खाधी है तुसी उहदे वल देखो, जिसने नहीं खाधी उहदे वल देखो, उहदे अंदर कितनी खुशी होवेगी। जिसने नहीं खाधी वो मुजराया होएगा। जिहदे पास दुनिया का धन है उन्होंने देखो कितना खुश होंदा है, जिहदे पास नहीं होंदा वो कितना होंदा है। जिहदे पास वो नाम धन होएगा, गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि वो अपने आप ही नजर आएगा, दसन की जरूरत नहीं। वो धन जिहड़ा सच्चा है, जिहदे अंदर हमेशा ही खुशी रहती है। कई बार हजूर फुल की मिसाल देंदे हुंदे सी कि बागां दे फुल खिड़े होंदे है, वो सानू सारियां नू खुश करते हैं। बेशक उन्हां दी मर्याद बहुत घट है, लेकिन हर बंदे दे मन विच पाउंदे है, हर बंदे दे अंदर वो खुशी पैदा करते हैं। इसे तरह संत महापुरख जिन्हां ने नाम जपिया जां जपणगे, उन्हां दे अंदर वो परमात्मा उस फुल की तरह खुशी पैदा करेगा। वो नाम जिहड़ा है अनੁਰਖੁੱਟ जिहड़ा भंडार है नाम है, उन्हां दे अंदर वो मालिक उन्हां ते किरपा करेगा। हाँ जी। नाम तन मुख उजले होए, हर पाया सच सोए। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहा, ऐ मन मेरे, उस हर नूं पाण वास्ते सानू किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं, ना ही असीं पा सकते हैं। वो शब्द की कमाई नाल पाया जाएगा। ज्यों ज्यों सिख शब्द की कमाई करता है, ये अंदरों ये दुश्मन जिहड़े है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ए मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। ये मन साडा जिहड़ा साडे अंदर सानू एक सेकंड भी ध्यान में नहीं लैन दिंदा, कदी किसी पासे फेरदा कदी किसी पासे फेरदा है, ये पिंगला हो जाता है। पारा किसनों क्या है? पारा किसी इंसान नूं दे दिओ, वो इंसान भी उहदे हथ पैर जुड़ जाते हैं। बिखसे अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। जदों उस परमात्मा के नाल लिव लग जाती है, भाई ये बिख जिहड़ा इस तरह बदल जाती है, जिस तरह किसी अच्छे पुरुष के नाल तुसी संगत करो तो तुसी अच्छे बन जाते हो। चाहे तुसी बेशक माड़े हो, जदों तुसी संगत करोगे उन्हां दी सोबत नाल, उन्हां दी देखभाल नाल तुसी भी अच्छे बन जाओगे। कीट न जाने प्रिंग को गुर कर ले आप समान। जिस तरह एक कीट प्रिंगी एक मिट्टी के खखरे विच रहिंदा है, वो मूँह च पा के एक लुड़े नूं चुक के लै आउंदे है, वो अपनी उस खुड विच रख दिंदा, लेकिन उसनूं पता नहीं कि मेरे नाल की होना है। अपनी तमज्जो नाल प्यार नाल उन्होंने बोली भी सिखा दिंदा है और वो फंग भी लग जाते हैं, उड्डणों तैयार हो जाता, जिहड़ा कि उड़ नहीं सकता। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सिख नूं नहीं पता कि मेरे नाल की होना है। अगर उन्होंने कहने मुताबिक चलता रहे तो एक दिन अपने समान कर लेगा, अपने वर्गा कर लेगा। टीचर लड़के नूं अपने तो भी उपर लै जाता। जे लड़का उन्होंने कहने मुताबिक चले तो एक दिन लड़का भी टीचर लग सकता। अगर असीं उन्होंने कहने मुताबिक ना चलांगे तो साडा कुछ भी नहीं बन सकता, फिर असीं कुछ भी नहीं हो सकते। इस तरह गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है
भाई वो नाम जिहड़ा नाम है उहदियां बड़ियां बरकतां ने। नाम की तारीफ नहीं हो सकती। कई बार मैं अगे भी ये साखी सुनाई है, जिसनों ध्रुव भगत कहा जाता है। वो अपने माता की गोद विच, पिता के गोद विच एक दिन बैठा सी। उसकी मतरेई माता ने बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं, तू इत्थे बैठ नहीं सकता। रोंदा रोंदा अपनी माता कोल चला गया, जाके कहन लगा माता नूं, माता तू इन्हां दी नौकरानी है कि जां राणी है? कहन लगी की गल है? कहंदे मैनू मतरेई माता ने बांह फड़ के बाहर कर दिता कि तू पिता के पास नहीं बैठ सकता। माता ने सहब सवा किया, बेटा इन्हां गल्लां नूं लैण वास्ते बड़ी तपस्या की, बड़े अच्छे कर्मां की जरूरत है। छोटा बच्चा सी, दिल च गल बैठ गई। छोटी उम्र दे विच ही घरों बाहर निकल तुरिया कि चलो किसी जंगल दे विच जाके तपस्या करते हैं। इको एक लड़का सी, शहर दे विच रौला पै गया। पातशाह ने तमाम वजीर दीवान ते होर सारे लोगों नूं कह दिता कि कोई ध्रुव नूं लभो। सारे अगे पिछे दौड़ भज पै गई। ध्रुव लभे ना, वो जंगल चला गया। फिर राजे ने कहा कि कोई लभ के लियाओ, मैं अद्धा राज दे देंदा हाँ। देखो अजे ईश्वर की बंदगी वास्ते गए है तो अद्धा राज मिलना शुरू हो गया। किसी ने जाके जंगल विच लभा, जाके कहा ध्रुव नूं कि तेरा पिता तेनों अद्धा राज देंदा है ते तू वापस चल। ते ध्रुव ने सोचा कि मैं ओहो ही हाँ जिन्हों अपने पास बहन नहीं सी देंदे। अज मैं ईश्वर के नाम ते जा रहा, तपस्या करन जा रहा मालिक के नाम ते मैनू अद्धा राज मिलने लगा, जे मैं कीता तो कुछ भी नहीं। ये नाम दे विच कुछ है। कहंदा मैं नहीं जाना। चला गया जंगल च, पर यह गल जारी रही कि ध्रुव नूं लभो। आखिर इत्थों तक पातशाह ने कह दिता कि मैं सारा ही राज दे दिंदा हाँ ध्रुव नूं, कोई लभ के लियाओ। किसी ने तलाश करदियां करदियां बड़ी दूर जाके किसी जंगल च लभा। बड़ी देर के बाद ध्रुव नूं कहा कि तेरा पिता हुण तैनूं सारा ही राज दिंदा है, तू वापस अपने राज महलां च चल। ध्रुव वापस आया। 36,000 साल उस समय ध्रुव ने राज किया। देखो उस नाम दे विच कितनी बरकत है। जिन्हों लागे नहीं सी बहन देंदे उसनूं सारा राज दे दिता। इस वास्ते कि सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए है, उन्होंने नाम का प्रचार किया। यही किया कि भाई जो भी तुसी गलत काम करते हो उन्होंने छड़ दो और ईश्वर की भगती करो, नाम जपो। नाम दे नाल साडी कल्याण होनी है। ये 84 का चक्कर साड़ा नाम दे नाल ही मिटना है। अगर असी होर कर्म करांगे तो 84 चों निकल नहीं सकते। बेशक सानू बड़े अच्छे जन्म मिल जाएंगे। कई ऐसे जन्म ने जिहड़े कुत्तियां दे जन्म आ गए, जिहड़े कारां ते तुरी फिरदे आ, खुराकां चंगियां मिलदियां, लेकिन है तो कुत्ता ही है। पशुओं के जन्म ने जिन्हां नूं खुराकां भी अच्छियां मिलदियां, कच्छा आदर मान हुंदा है, पर है तो पशु है ना। 84 चों तो नहीं निकल सकिया। इस वास्ते संत कहते हैं कि 84 नूं निकलण वास्ते सानू नाम की जरूरत है, ईश्वर की भगती की जरूरत है। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया ते आए हैं उन्हें यही प्रचार किया है। हाँ जी। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा,
दरगाह मिले सजाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बगैर शब्द दे सब जग दसिया उन्होंने भुलदा फिरदा है। दरगाह मिले सजा। संतां दे विच ये बड़ी पालसी है कि वह किसी का नाम नहीं लैंदे। असीं जदों भी गल करांगे कोई किसी का नाम लैके गल करांगे, संत मुश्तरका गल करते हैं, वो सारिਆਂ ਨੂੰ समझाते हैं, कहते भी सारिਆਂ ने, मगर किसी का नाम नहीं लैंदे। सारे जगत नूं क्या है कि सारे जगत भुलदा फिरदा है और दरगाह विच सजा मिलेगी बगैर नाम दे। हाँ जी। बिन शब्द जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकारा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, इस देही के अंदर पांच चोर वसदे। वो चोर हर वक्त साड़ी माया नूं लुट रहे, सानू कोई समझ नहीं आ रही। कदी क्रोध का टाइम लग जाता है, कदी मोह का लग जाता है। इस तरह पंजे चोर जिहड़े है वो साडे अंदर सन मार रहे, वो साडे उस टाइम नूं लुट रहे हैं, उस चीज़ नूं लुट रहा है, वो अमृत खा रहा है जिहड़ा कि साडी सुरत नूं मिलना है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, जो जो चोर भजन के प्राणी सौ सौ दुख सहे। स्वामी जी महाराज भी जो करके फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया। ये चोरी जिहड़ी है भजन दी, ये कदी घाटा पूरा नहीं हो सकता। सारे घाटे पूरे हो सकते, दुनिया की चोरी कोई करेगा फिर भी वो घर सब कुछ आ जाता है, लेकिन भजन की चोरी जिहड़ी है ये साडा घाटा पूरा नहीं हो सकता। ये बारे संत कहते हैं कि भाई जल्दी तो जल्दी अपना टाइम जिहड़ा है समझा लो। मनुष्य जन्म आया है, इस मनुष्य जन्म का टाइम जिहड़ा है इनू गलत ना करो। देखो एवें ना लंघ जाए, एवें चला गया फिर मुड़ के तुहानू मिलना नहीं। जल्दी तो जल्दी इस समय नू संभाल लो। सब तो पहला दुख किहड़े आउणगे? आलस नींद सतावे तैनूं। सब तो पहला सानू की हुंदा है, किहड़ा दुख आउंदा है जिन्हां नूं असीं समझदे कुछ नहीं। आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी। आलस आ जाएगा, सौ जाएगा। जे जाग आए भी इसनों फिर भी कहता कोई नहीं, अज बड़ी रात है, फिर असीं भजन उठ के भजन करांगे। फिर नींद आ जाती है, नींद आ गई, दिन चढ़ गया, बंदगी का टाइम लंघ गया। वो टाइम लंघ गया, जिहड़ा टाइम लंघ गया वो मुड़ के नहीं आउंदा। जिहड़े पानी अज लंघ जाने पाली आ, वो मुड़ नहीं आने भलके। जिहड़ा सुफन जवान चों निकल गया मुड़ के आमदा विच जवान नहीं। जिहड़ा तीर कमान चों लंघ गया मुड़ के आमदा विच कमान नहीं। जिहड़े बुत्तां उत्ते मिट्टी पै जानी है भाई, वो साड़े च बहना नहीं रल के। वो टाइम लंघ गया, चला गया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि 24,000 श्वास सानू वो परमात्मा दे रहा है। साडा फर्ज है कि एक एक श्वास जिहड़ा बड़ा कीमती है, इसनूं असीं जाया ना गवाईए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। तुसी विचार करो, एक श्वास की कीमत जाने त्रिलोकी भी दे दईए नहीं वापस मिल सकती। तो साढ़े 24,000 श्वास जड़ा है बिला वजह ही चला जाता है। बैर विरोध विच, निंदिया स्तुति विच और कई कामां दे विच साढ़े श्वास जा रहे हैं। और संत कहते सास गरास ना विसरे, ऐ पुरुष तैनू खांदियां पींदियां सौंदियां बहंदियां भी
ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਪਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਾਸੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਸਭੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਐਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਪੜੋ, ਕਿ ਐਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਥਰੇ ਫਕੀਰ ਦਾ
ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਆਈ। ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਥਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖ ਫੜਕਣਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਗਰਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਸੁਥਰਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਬਸਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੱਖ ਫੜਕਣਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗਰਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰਾ ਸੁਥਰਿਆ, ਜੇ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਬਸਾ। ਇੱਕ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਥਰਾ, ਅਸਲੀ ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं कि असी दुनिया में आए थे, बहुत दुनिया का खाएंगे माल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। जब दुनिया में आए असी सोचा दुनिया का माल बहुत सारा असी खावांगे, लेकिन इत्थे दा इत्थे ही रह गया और काल पकड़ के लै गया। कोई समझ नहीं आई की करना है। बगैर मुरशद दे सानू कोई समझ नहीं आती। मुरशद कहता भाई टाइम ना गवा अपना, मेरी ना कर, जो तेरी हैगा तेरी है, जो तेरे पास आना तेरे पास ही आना, तेरी उस चीज़ नू कोई नहीं लै सकता जिहदे ते तेरी मोहर लगी है। हाँ जी। हो मैं मेरा कर कर विगोते, ए चले ना चल दिया नाल, गुरमुख होवे सो नाम त्यावे, सदा हर नाम संभाल। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई गुरमुख होवे, वो नाम जपे, और नाम नू संभालेगा। असी देखना है कि नाम कोई सोने की डली नहीं कि जिहड़ी असी ट्रैंकां दे विच पा लैनी है। नाम एक सत है। जिस तरह तुसी किसी बोतल का ढक्कना उतों चुक दो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सत निकल जाएगा, बोतल खाली रह जाएगी। किधर गया है पता नहीं, किधर गया, किहड़े पासे गया है। ये तो महाराज नौवीं पातशाही ने साड़ी जिंदगी की हालत दसी है। जिस तरह घड़े नूं फुट होंदा है, पानी का भरिया होंदा है, आस्ते आस्ते पानी निकल जाता है, खाली घड़ा रह जाता है। ये हालत साड़ी जिंदगी आस्ते आस्ते साढ़े श्वासां की पूंजी मुक जाती है और असी खाली खोखा रह जाते हैं। एक दिन वो समा आ जाता है। इस वास्ते गुरु साहब जी जो फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि सानू इस मनुष्य जन्म के समय को गवाना नहीं चाहिए। जल्दी तो जल्दी असी मुरशद के कहने मुताबिक कुछ ना कुछ टाइम अपना परमार्श देना चाहिए है, और जिहड़ा सानू इत्थे भी काम देगा और दरगाह विच भी काम देगा। हाँ जी। गुरमुख होवे सो नाम त्यावे, सदा हर नाम संभाल। सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल। वो सच्ची बाणी साढ़े अंदर है, जिहड़ी 24 घंटे आ रही है। कबीर साहब ने उसे नू ही कीर्तन किया, उसे नू बाणी किया, उसे नू नाम किया कि जिहड़े साढ़े अंदर वो धुन आ रही है, जिहड़े अंदर साढ़े वो गायब शब्द आ रहा है, जिसका कोई नमूना नहीं, जिसकी कोई तारीफ असी बाहर नहीं कर सकते और ना असी किसी नू दस सकते हैं। उसनू सच के अज भी है, पहला भी सी, फिर भी उसे ने रहना, और वो 24 घंटे आ रहा है। ना वो कोई उन्होंने बंद कर सकता है, ना उसनू कोई चला सकता है। वो गुरमुख जिहड़े हमेशा उस सच्ची बाणी का कीर्तन करते हैं, उसकी सलाह करते हैं, उसकी ही शोभा करते हैं। हाँ जी। सच्ची बाणी हर गुण गावे,
ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਘਟ ਚਾਨਣ ਅਮਰ ਸਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਘਟ ਚਾਨਣ ਅਮਰ ਸਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਣ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਘੜੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਗਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਨਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੜਾ ਕੁਛੜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਚੁਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਬੜਾ ਜਿਸ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਰ ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 84 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
वो बूंद नहीं रहिंदी। आत्मा परमात्मा के पास चला गई, वो भी परमात्मा बन गई। साडा ये फर्ज है कि असी इस मनुष्य जन्म का अधिकार जिहड़े है वो मनुष्य जन्म के जिहड़े कर्म ने वो असी करिए। ये मनुष्य जन्म के कर्म नहीं जो असी कर रहे हैं। मनुष्य जन्म का कर्म है ईश्वर की भगती करनी, नेक पाक काम करने, एक दूसरे का तरस करना, किसी की मानत नहीं रखनी, किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की दर्द करना, किसी को कुछ उहदा फायदा देना किसी को। ये मनुष्य जन्म का कर्म नहीं कि बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है, खुश खुश लैंदा बस्त पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। कि दूसरे दियाँ जगह दूसरी दियाँ जायदादां ते असी हमले करके ते गरीब नूं या किसी होर नूं असी उहनूं सताईए, उहदियां जायदादां ते असी कब्जा करिए जां उसनूं दुखी करिए। परमात्मा देखदा साडे अंदर, कदी न कदी उस दा समा आ जांदा है। कर्म कीता हर एक नूं भुगतना पैंदा है। कई बार दस्सिया कि जदों बाली सकरीब नूं मार के सुੱਟ आउंदा सी बाहर, भरा सी उसका, लड़ाई करते सन, मार के सुੱਟ देना, कई दिन उसनूं होश नहीं आनी। श्री रामचंद्र महाराज जी गए, देखिया, उन्होंने सुग्रीव नूं कहा तू उठ, उठ के कूक मार, असीं तेरी मदद करांगे। कहने लगा मेरी मदद नहीं तुसी करनी, उन्हें मैनू फिर मारना है। कहने लगे नहीं असीं तेरी जरूर मदद करांगे। जब कूक मारी, बाली आ गया, युद्ध लग पिया। श्री रामचंद्र महाराज जी दरख्त के ओले होकर तीर मारिया, तो बाली ने कहा कि कीता ही, जे तू यह काम करना ही तो सामने होकर करना ही, चोरी क्यों किया है? पर या तेरे नाल भी इदा ही होएगा। जदों द्वापर युग आया, द्वापर युग के विच कृष्ण अवतार विच आ गए तो बाली शिकारी बन गया। जंगल में बैठे ही पद्मासन उन्होंने चमकदा सी। बाली ने सोचा शिकारी ने किसी जानवर की अख है, तीर मारिया, पैर न बजा। राम की आवाज़ आई, दौड़ के जाके देखता तो माफ़ियाँ मंगन लगा, महाराज मैनू माफ़ी दो, मैं बड़ी गलती की है, मैं तुहानू तीर मारिया। कहते कोई गल नहीं, ये बदला ही है, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, मैं भी तैनू चोरी तीर मारिया सी, ये बदला ही है, कोई गल नहीं, घबराने वाली कोई गल नहीं। तो भाई जे एडे वड्डे ऋषियां मुनियां नूं बदले देना पैंदे है तो असी कौन है? असी तो कुछ भी नहीं है। इस वास्ते इस बंदे का जिहड़ा अधिकार है, जो काम ने वो इस तरह ही है। हजूर कई बार फरमाउंदे ते बड़ा वरिश जिहड़ा हुंदा है, इहदे थल्ले जानवर भी आउंदे है और पशु भी आउंदे है, बुरे बंदे भी चंगे भले भी सारे इहदे थल्ले आके ठंड लैंदे। ये इंसान जिहड़ा ये बहुत बड़ा वरिश है, इसने सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा देना चाहिए, सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जिहड़ा उस परमात्मा का जीव है, परमात्मा की पैदाइश है, उस परमात्मा की रूह इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो साडा भी फर्ज है कि असी हर एक दे नाल प्यार करिए और प्यार करके असी उस परमात्मा पासों अपने इस जन्म का फायदा लईए। हाँ जी। नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पार। अगर किसी का निस्तारा या किसी ने किस्मत बनानी है या अपना प्रलब्ध नूं उच्चा करना है तो फिर नाम की जरूरत है। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए जाने साफ कह रहे हैं कि नाम के नाल ही भाई तेरा निस्तारा बनेगा, नाम के नाल ही तेरी किस्मत प्रलब्ध उच्ची बनेगी, बगैर नाम दे कुछ नहीं बन सकता। हाँ जी। नानक राम नाम निस्तारा, शब्द रते हर पार।